السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں مولوی محمد فیصل اشرفی، آل انڈیا امامس کونسل نیشنل جنرل سیکرٹری ہوں۔ ہم لوگ موجودہ حالات میں اسلاموفوبیا کا تعلق سے علماء کرام کا کیا ذمہ داری ہے اس کے متعلق ایک اہم پروگرام کرنا طے کیے ہیں، جو آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں اور پروگرام کے سب سے پہلے ہمارے اسپیکر ہیں جناب مولانا محمد احمد بیگ ندوی صاحب، سابق استاد ندوۃ العلوم لکھنؤ یو پی اور قومی صدر آل انڈیا امامس کونسل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی نازک اور حساس موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے اسلام فوبیا۔ آج پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں سے خوف زدہ کرنے کے لیے اسلام فوبیا کا لفظ کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسلام فوبیا دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک لفظ اسلام ہے اور دوسرا فوبیا ہے۔ اسلام عربک ورڈ ہے، فوبیا یونانی ورڈ ہے۔ فوبیا کے معنی ڈرنا، خوف کھانا، دہشت میں مبتلا ہونا۔ اسلام کے ساتھ فوبیا کو جوڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ایک عرصے دراز سے مغربی میڈیا اور مغربی میڈیا کے نقش قدم پر دوسرے اور جو میڈیا ہاؤس ہیں ان سب کی طرف سے یہ تصور دینے کی اور یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام خوف اور دہشت کا مظہر ہے۔ اسلام اور مسلمان خوف اور دہشت کے مرکز ہیں۔ جہاں اسلام نظر آئے، مسلمان نظر آ جائیں، جہاں مسجد و مدرسہ نظر آئے، جہاں حجاب اور داڑھی اور ٹوپی نظر آئے، تو گویا یہ سب دہشت کے ذرائع ہیں اور دہشت ان کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہے۔ گویا ان کو دہشت کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام فوبیا کی جو بیماری ہے، ایک سائیکولوجی اور نفسیاتی بیماری ہے۔ یورپ جس نفسیاتی بیماری میں ایک عرصے دراز سے مبتلا ہے، اگر اس کا تاریخی طور پر جائزہ لیا جائے اور گہرائی کے ساتھ اس پر نظر ڈالی جائے تو ہم کو اس کی تاریخ تقریباً 1000 برس پرانی ملے گی۔ یاد کیجئے وہ عہد و زمانہ جو صلیبی جنگوں کا ہے، 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری۔ ان دونوں صدیوں میں اسلام کے تعلق سے عیسائی دنیا نے، مغربی دنیا نے جو پروپیگنڈا کیا، اسلام کے خلاف جس طرح دہشت کا ماحول بنایا اور اسلام کو دہشت کا مذہب قرار دیا، وہی تاریخ آج پھر دہرائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ لفظ استعمال اس وقت سے ہوا جو سن 1976 کے زمانے سے
इस लफ्ज का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है और धीरे धीरे इस लफ्ज का इस्तेमाल बढ़ता रहा, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब 11 सितंबर को हमला हुआ, उस हमले के बाद से इस्लामोफोबिया का लफ्ज कसरत के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने इस्तेमाल करना शुरू किया। यूरोप ने तो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो महाज खोला और जो जहर घोला, जो जहन तैयार किया, तो उस जहर के जहरीले असरात न सिर्फ यूरोप की दुनिया में महसूस रहे, बल्कि यूरोप की सरहदों से निकलकर दुनिया के दूसरे ममालिक में, दूसरे बड़े आजमों में भी वो जहर फैल गया। और बदनसीबी की बात यह है कि हमारे मुल्क भारत ने भी वो रविश अपनाई और इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ उसने भी वही जारिहाना रवैया इख्तियार किया, जो जारिहाना रवैया यूरोपीय कलमकारों ने, अमेरिकन राइटरों ने, वहां के फनकारों, अदीबों, कलमकारों, स्कॉलरों ने, दानिश्वरों ने, मुफक्किरों ने इख्तियार किया। यहाँ के दानिश्वर भी वही रविश इख्तियार किए हुए हैं, वही रवैया इख्तियार किए हुए हैं। यहाँ के फासिज्म के जो अलमबरदार हैं, फिस्ताई ताकत को जो हवा देने वाले हैं, फिस्ताई ताकत को जो एक तरह से बढ़ावा देने वाले हैं, वो भी इस्लामोफोबिया का लफ्ज इस्तेमाल करके इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे हैं। यहाँ की कसीर आबादी को इस्लाम से खौफ में मुब्तला कर रहे हैं, दहशत में मुब्तला कर रहे हैं। इस्लामी तालीमात से, कुरान मजीद से और आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकीदा तालीमात से सारी दुनिया और इस मुल्क के बाशियों को, इस मुल्क के साकिनों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। और इस मुल्क का जराए इब्लाग कर रहा है, इस मुल्क का मीडिया कर रहा है, इस मुल्क के जो चैनल्स हैं, जो टेलीविजन चैनल्स हैं, वो सब इस इस्लामोफोबिया का तस्वुर आम कर रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। ऐसे हालात में हम उलमा की क्या जिम्मेदारी बनती है? हम उलमा की जिम्मेदारी है कि जिस तरह अहले कदीम में उलमा ने इस्लाम का हर तरह से दिफा किया, इस्लाम के चेहरे से गुबार को हटाया, इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को दुनिया के सामने पेश किया, आज हमारी भी जिम्मेदारी है हम दुनिया को बताएं, इस्लाम के खिलाफ कीचड़ उछालने वालों को, इस्लाम के चेहरे पुरनूर को दागदार करने वालों को बताएं कि इस्लाम अपनी पाकीज़ा तालीमात की बुनियाद पर, अपनी गैर मुतासिबाना पॉलिसियों की बुनियाद पर हमेशा से बिल्कुल बेदाग रहा है। उसका चेहरा और उसका दामन बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं से कोई उसके दामन पर दाग धब्बा नहीं है। जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें चल रही हैं, इन साजिशों का मुकाबला करना हम उलमा की जिम्मेदारी है। अगर हम उलमा ने अभी वक्त की पुकार पर लब्बैक नहीं कहा, तो इस्लाम के खिलाफ जहर इस मुल्क में घुलता चला जाएगा। और एक वक्त वो आएगा कि जब हम इस्लाम का दिफा करना चाहेंगे, इस जहर का तिर्याक मुहैया करना चाहेंगे, तो हम जहर का तिर्याक मुहैया नहीं कर पाएंगे, इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। अभी वक्त है कि इस बीमारी का, जो जहनी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है, जो फिक्री बीमारी है, जो एक तरह से सोच की बीमारी है, इस सोच की बीमारी का इलाज करने का वक्त अभी हमारे पास है। इस वक्त को अगर हमने गंवाया, इस वक्त को अगर हमने जाया किया, अगर हमने इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को और उसकी गैर मुतासिबाना पॉलिसियों को दुनिया के सामने पेश नहीं किया, तो हम इंदल्लाह नाखूज होंगे और जवाबदेही का जो मामला अल्लाह के यहाँ पेश आएगा, हम वहां बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी एक मजहबी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, मुल्की और वतनी जिम्मेदारी है। और सिर्फ उलमा ही की नहीं, बल्कि जो मुस्लिम दानिश्वर हैं, मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के जो लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, दानिश्वर हैं, अहले सियासत हैं, और जो इस्लाम की तालीमात से वाकिफ हैं, आगाह हैं, उन सब की भी जिम्मेदारी है कि इस्लाम के ताल्लुक से जो आज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस्लाम फोबिया का लफ्ज आम किया जा रहा है, इस्लाम फोबिया का चर्चा करके, इस्लाम फोबिया को बार बार मीडिया के जरिए दोहरा कर इस्लाम के खिलाफ जो साजिश की जा रही है, इस साजिश को बेनकाब करने में
इस साजिश को खत्म करने में गैर मुस्लिम जो दानिश्वर हैं वो सब भी साथ आए, शाना बशाना खड़े हों, ताकि हम इस मुल्क को जहर आलूद होने से बचा सकें। वरना अगर ये मुल्क जहर आलूद हो गया, इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी आम हो गई तो, और जैसा कि हो रहा है, एक मखसूस तबका है यहाँ जो संघ का तबका है, आरएसएस का तबका है, एक मखसूस नजरिए और आइडियोलॉजी वाला तबका है जो ईसाइयत का अलमबरदार है, वो इस नजरिए को आम कर रहा है, इस्लाम फोबिया को वो आम कर रहा है, उसका प्रचार कर रहा है। मीडिया उसी का है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो बार बार रोज इस तरह के मौजूआत को उछाल रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब दें, हम पीछे न हटें। हमने हर दौर में इस्लाम का दिफा किया है, इस्लाम का मुखाफ इस्लामी तालीमात को दुनिया के सामने पेश किया है। आज फिर वो नाजुक वक्त आ पड़ा है कि हम इस्लाम का दिफा करने के लिए मैदान में आए। हम अपने घरों से निकलें, अपने खानकाहों से निकलें, हम अपने मदरसों से निकलें, हम अपनी मस्जिदों से निकलें, हम वो किरदार अदा करें जो हज़रत हुसैन ने मैदान करबला में अदा किया था इस्लाम को बचाने के लिए। निकलकर खानकाही से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि फख्र खानकाह है फ़क़त अंदूर व दिलगिरी। हमको मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हम इस्लाम के ताल्लुक से इस्लाम को दुनिया के सामने जो उसकी पाकीदा तालीमात है पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस्लाम के ताल्लुक से गलतफहमियां दूर होंगी। इसके जो जराए हो सकते हैं वो तकरीर है, तहरीर है, बयानात है और मीडिया का इस्तेमाल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इन सब का इस्तेमाल करके इस्लाम फोबिया को जो आम किया जा रहा है इसका मुकाबला किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि इस्लाम के ताल्लुक से इस्लाम पर ये इल्जाम है, ये इंतहाई गलत इल्जाम है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। इस्लाम का दहशत से, इस्लाम का दूसरों को खौफ में मुब्तला करने से कोई ताल्लुक नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, ये कुरान मजीद का अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस्लाम का रोज़ अव्वल से ऐलान है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप इस्लाम को अगर बखुशी कबूल करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना इस्लाम आप पर जोर जबरदस्ती नहीं डालता, आप पर दबाव नहीं डालता कि आप इस्लाम मजहब को कबूल करें। इस्लाम किसी को खौफ में मुब्तला नहीं करता, इस्लाम किसी को दहशत में मुब्तला नहीं करता। इस्लाम की 1400 साल तारीख इस बात पर गम्मात है, उसका एक एक हर्फ, उसका एक एक वर्क इस बात पर रोशन दलील है कि कभी उसने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला, किसी को खौफ में मुब्तला नहीं किया, किसी को दहशत में मुब्तला नहीं किया। लेकिन आज ये इस्लाम दुश्मनी पर मबनी जो नजरियात काम कर रहे हैं, जो सोच काम कर रही है, ये न सिर्फ मुस्लिम दुनिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का अलार्म है, तबाही की अलामत है। इस्लाम जो पाकीदा तालीमात रखता है, इस तालीमात को समझने की जरूरत है। हम गैर मुस्लिम भाइयों से भी अपील करेंगे, उनसे दरखास्त करेंगे कि वो इस्लाम का सच्चे दिल से, मुंसिफाना अंदाज में और इंतहाई फराख दिली के साथ इस्लाम की पाकीदा तालीमात का मुताला करें। वो देखेंगे, वो पाएंगे कि इस्लाम के दामन में कितनी वुसअत है, कितनी कुशादगी है। किसी के लिए कोई इस्लाम अपने दामन में खौफ का और किसी को डराने का रवैया नहीं रखता है। उसका सुलूक सबके साथ हमदर्दी का है। इंसानियत की बुनियादों पर इस्लाम ने जो तालीमात पेश की हैं, दुनिया का कोई मजहब वो उस तरह की तालीमात पेश करने से हासिल है, कोई मजहब पेश कर ही नहीं सकता। तो हमको बहुत ही फराखदिली के साथ और बहुत ही संजीदगी के साथ जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं इस्लाम का मुताला करें। फिर हम उलमा से अपील करेंगे कि उलमा इन हालात को मद्देनजर रखकर, इन हालात को सामने रखकर जवाब देने की कोशिश करें और इस्लाम फोबिया का जो एक तरह से प्रोपेगेंडा और इस्लाम पर इल्जाम है, इस इल्जाम को दूर करने की कोशिशें करें, मैदान में आए। और जिस तरह अहद कदीम में उनका रवैया रहा है इस्लाम से इस्लाम पर जो गुबार आया, इस्लाम पर जो प्रोपेगेंडा, इस्लाम पर जो इल्जाम तराशियां की गई, जिस तरह अहद कदीम में उन्होंने इस्लाम का दिफा किया, आज भी इस्लाम का दिफा करें। यही वक्त की पुकार है। अगर हमने ये न किया तो फिर हम पकड़ से नहीं बच सकते इंशाअल्लाह। और इस दुनिया में भी हमको जो रुसवाई और जिल्लत उठानी पड़ेगी उसका भी कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की पाकीदा तालीमात को
पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने और पेश करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।